Good morning, students. Welcome to the session. In this session, we are going to discuss the major changes that are happened in the physics syllabus. During the last night, CBSE has uploaded a PDF. So, what is the change in the syllabus that I will discuss here? So, first of all, I will show you the PDF. This is the revised PDF, revised syllabus for physics. So, this is the revised syllabus. Opening this PDF. So this is the revised syllabus. So let me go to the plus 2 syllabus because I am going to discuss plus 2 here, and after this video I will discuss the syllabus of plus 1. So here is the syllabus of plus 2. You can see here, from here it is starting the marks scheme is same as the earlier. तो marks scheme जो है वो change नहीं है. Almost you can see here, if I zoom in, you can see this is the plus 2 theory. Maximum marks are 70 again. So no change in the marking scheme. Examination paper के जो marking scheme है that will be same. And where are the changes? There is no change in number of periods, no change in marks. Marks भी same है, number of periods are also same, and the units are also same. So 9 units are there. 9 total units are there. No reduction in the unit, but some topics are reduced. That I will discuss here. Don't worry, wait for that. So this is the syllabus. 9 units total. Total 9 units are there. Semiconductor devices, electronic devices is the 9th unit. So total marks 70. Now see, this is the first unit. This is the second unit. This is the first chapter. This is the second chapter. And one PDF. This is the PDF of revised syllabus. This is the PDF of revised syllabus. You can see here at the starting he has written here revised. So if anyone wants this PDF, he or she can contact me. So this is the revised physics. That means this is the revised syllabus. There are some changes in this syllabus. Now another PDF is available. That is deleted portion. So this PDF is available, and if I open this one, here you can see the syllabus that is deleted. So here he has written chapter 1. So some students are asking about that this whole chapter is removed or what is removed. So students, whole chapter is not removed. Some topics from these chapters are removed. That topics are mentioned here. So now firstly I will discuss the plus 2 syllabus. So that's why I am going to plus 2, and I have prepared a PDF a file from that. So this is the file, and here I am going to discuss the topics, because we have covered 3 units before the qualifications. So first unit, second unit, and the 9th unit we have covered, and sir has also started the unit number 7. So but 7 को अगर side पे भी कर दें, then we have completed about 3 units, 1, 2 and 3. So 1, 2 and 9 में से कुछ topics remove हुए हैं, that I am going to discuss. So first of all, if you feel that this video is useful, then like and share this video. Okay, so first, starting with the first chapter, electrostatic is the first unit. Electrostatics is the unit number 1. And what topics are there? Electric charges, positive, negative, conservation of charge. That means charge can neither be created nor be created. Coulomb's law, 2 point charges, means Coulomb's law for the force between 2 point charges. Then forces between multiple charges. Students, this is important one. Multiple charges means when there are 3 charges. This is the charge, this is the charge, and this is the charge. And we have to find the force, net force acting on this charge. This is, let's suppose, Q2. This is Q3. So these questions are based on the principle of सुपरपोजिशन. तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड थे ये क्वेश्चंस, जिसमें हमने वेक्टर्स के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व किया था. देन कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन.
Continuous charge distribution means lambda, that is linear charge density, then sigma, that is surface charge density, then rho, that is volume charge density. So this is continuous charge distribution. So up to this first चैप्टर में से जो कूलम्स लॉ है, फोर्स वगैरह है, वो कवर है. आफ्टर दिस हमारा स्टार्ट हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड. सो ड्यूरिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ओके, दीज आर द इंपॉर्टेंट वन. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होगी, पॉजिटिव चार्ज के ये कैसे होगी, नेगेटिव के ये कैसे होगी. जैसे हमने एक क्वेश्चन किया भी था, वो दिस इज द क्वेश्चन. ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन था एक किया हमने. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. जब कुछ चेंज होता है सिलेबस में तो कुछ टाइप के नए क्वेश्चंस हमें मिलते हैं. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू विल सी ऑब्वियसली इन एग्जामिनेशन. दिस इज एंगल अल्फा, दिस इज बीटा, तो इनमें से कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, यहाँ से रेस इस तरफ आ रही हैं एमिटिंग. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. तो मैं यहाँ पे यही डिस्कस कर रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप से मिल सकते हैं. देन इलेक्ट्रिक डाइपोल, बट फर्स्ट यूनिट में से बहुत ज़्यादा कुछ रिमूव नहीं हुआ है. इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल. यहाँ पे बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल में आ जाएगा ऑन द एक्सियल लाइन, ऑन द एक्सियल लाइन एज वेल एज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन. तो यहाँ पे एक्सियल लाइन का भी आ जाएगा. ठीक है, एक्सियल लाइन एज वेल एज इक्वेटोरियल लाइन. सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो यहाँ पे मेंशन नहीं है सिलेबस में, बट कुछ चीज़ें जो रिमूव हुई हैं उनको भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, इक्वेटोरियल एंड एक्सियल लाइन. आई होप इट इज़ क्लियर. देन हमारा आ जाएगा टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, टॉर्क हो गया. उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज गॉस लॉ आ गया आगे. स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम, एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर. अच्छा, यहाँ पे चेंज है बच्चे, दिस थिंग यू हैव टू नोटिस. यहाँ पे चेंज है, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर की डेरिवेशन है, दैट इज़ लाइक जो हमने की थी, दैट वी हैव कवर्ड. दिस इज़ अ वायर एंड गॉसियन सरफेस इज दिस वन. तो इसका गॉसियन सरफेस इस टाइप का बना था. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में आया था रिजल्ट 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट समथिंग, ऐसा कुछ था. सो दिस इज़ द पॉजिटिव चार्ज शीट. तो इस टाइप का जो डेरिवेशन है, दैट डेरिवेशन इज इन द सिलेबस. 1 or 2 derivations are removed, that I will discuss. So infinite long straight wire derivation is there in the syllabus. Uniformly charged infinite plane sheet. Okay, this is the conductor and this is now sheet. Sheet का कौन सा केस था बच्चे, this one. This one was the case of sheet. This one was the case of sheet, where we have taken this as Gaussian surface. This is the Gaussian surface. And the electric field due to this sheet, this positive sheet or this negative sheet is sigma by 2 epsilon naught. तो इसका रिजल्ट भी आपको याद होगा, सिग्मा बाय 2 epsilon naught. So these topics are, these two applications are available, these two applications are present in the syllabus, that is infinite long straight wire and uniformly charged infinite plane sheet. Now I am going to discuss what is removed here, because we have seen 4 applications of Gauss law. We have seen 4 applications of Gauss law, but they have removed 1 or 2 applications that are mentioned here. So here you can see the removed part that I have mentioned here. So this is the deleted part. Okay, this is the deleted part from the syllabus, and this is the deleted part. So here chapter number 1 is mentioned, but chapter number 1 का मतलब ये नहीं है कि chapter number 1 पूरा रिमूव कर दिया. chapter number 1 में से नेम लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, उसमें से एक टॉपिक रिमूव हुआ है, दैट इज यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल. ठीक है, तो स्फेरिकल शेल वाला टॉपिक रिमूव हुआ है. अगर आपको याद हो तो मैं एक बार थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ. यहाँ पे स्फेरिकल शेल वाला टॉपिक था बच्चे, जिसमें यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था ऑन द सरफेस. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था ऑन द सरफेस, एंड जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है उनको पता होगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था. और इसका अगर ग्राफ दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस, तो इसमें सिग्मा लिया था हमने.
सरफेस चार्ज डेंसिटी। और अगर इसका ग्राफ देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, तो मैंने यहाँ से बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ऑन द वाई एक्सिस। तो जो बच्चे अच्छे से स्टडी कर रहे हैं उनको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ कहीं भी हम देख रहे थे कितना था इलेक्ट्रिक फील्ड, 0, क्योंकि इनसाइड कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो अप टू सरफेस क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम था, उसके बाद फिर से जो था वो डिक्रीज हो रहा था। सो दैट मीन्स यहाँ पे ग्राफ इस टाइप का था, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और उसके बाद सरफेस के ऊपर मैक्सिमम, आफ्टर दैट इस टाइप से था। सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इस टाइप की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी। आई थिंक जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता दे कैन गो थ्रू अवर नोट्स, उनको एक बार नोट्स में जाके देखें, ठीक है। तो इस टाइप की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी। इस टॉपिक को बच्चे रिमूव कर दिया गया है सीबीएसई की तरफ से, इस टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है सीबीएसई की तरफ से। लेकिन जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं जेईई के लिए, नीट के लिए या किसी और एग्जाम के लिए, वो इस टॉपिक को करके चलें, ठीक है। सो दिस टॉपिक इज रिमूव्ड, आई एम मेंशनिंग हियर दिस टॉपिक इज रिमूव्ड। तो इसको रिमूव कर दिया है सीबीएसई ने, 30% रिड्यूस किया है सिलेबस, तो 30% में ये टॉपिक नहीं है। सो दिस टॉपिक इज रिमूव्ड। इसके बिना जो फर्स्ट यूनिट है उसमें से और क्या रिमूव हुआ, फर्स्ट यूनिट में से और क्या रिमूव हुआ, देखो एक हमने स्फेरिकल शेल किया था, एक हमने किया था सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर में क्या था, हर जगह पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर था, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। सो दिस इज लाइक अर्थ, सॉलिड स्फीयर इज लाइक अर्थ एंड चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस एज वेल एज इनसाइड द सरफेस। तो एक ये भी डेरिवेशन हमने की थी, आई थिंक आपको याद होगा। दिस इज पॉजिटिव, एक बार वेट करना प्लीज, दिस इज द सरफेस, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस एज वेल एज इनसाइड द सरफेस। तो ये भी डेरिवेशन हमने की थी एक, ठीक है। सो दिस डेरिवेशन वी हैव आल्सो सीन एंड इन दिस केस वी हैव यूज्ड सिग्मा। तो जो बच्चों ने अच्छे से सॉरी रो, इन दिस केस वी हैव यूज्ड रो एंड ग्राफ फॉर दिस वन इज लाइक दिस वन। ग्राफ देख लो बच्चे कैसा बना था, जिनको नहीं पता डिस्टेंस, जो बच्चे सिंसियरली क्लासेस लगा रहे हैं उनको बिल्कुल यहाँ पे पता होगा कि कौन सी डेरिवेशन की हम बात कर रहे हैं। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इन दिस केस ग्राफ विल बी लाइक दिस वन। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था जब तक रेडियस अंदर था, और एट सरफेस पे मैक्सिमम वैल्यू आ गई थी हमारी, दिस इज द सरफेस, सरफेस पे मैक्सिमम, एंड आफ्टर दिस इट इज़ ग्रेजुअली डिक्रीजिंग। तो ये भी ग्राफ था एक, जिन बच्चों ने अच्छे से क्लासेस लगाई हैं उनको पता होगा, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस टॉपिक इज़ ऑल्सो रिमूव्ड, दिस टॉपिक इज़ ऑल्सो रिमूव्ड फ्रॉम द CBSE, रिमूव्ड बाय CBSE, बट यू कैन रिमेंबर इन द नोट्स। आपके पास अगर अभी किया हुआ है तो आप उसको रखो याद, कोई बात नहीं, बट दिस टॉपिक इज़ रिमूव्ड। सो यूनिफॉर्मली चार्ज, यहाँ पे स्फेरिकल शेल लिखा है, दिस इज हॉलो, और क्या था ये, हॉलो था या सॉलिड था, इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं है। बट आई थिंक यहाँ पे सिलेबस में कुछ मेंशन नहीं है कि हमने कोई रखा है, तो दैट मीन्स हॉलो भी रिमूव हो गया और सॉलिड भी रिमूव हो गया। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट यूनिट में से जो रिमूव हुआ वो सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर हो जाना चाहिए कि हॉलो एंड सॉलिड स्फीयर की जो एप्लीकेशन थी गॉस लॉ की, वो हमें इसमें से यहाँ पे रिमूव कर दी गई है। सो दिस इज द डिलीटेड पार्ट, आई होप इट इज़ क्लियर। अच्छे से क्लियर कर लेना बच्चे, चैप्टर इज़ नॉट क्लियर्ड, चैप्टर इज़ नॉट रिमूव्ड, सम टॉपिक्स फ्रॉम दैट चैप्टर आर रिमूव्ड। सो 2 टॉपिक रिमूव हुए हैं, वन इज़ सॉलिड स्फीयर, वन इज़ हॉलो स्फीयर। तो याद रखना, एक हॉलो स्फीयर रिमूव हुआ है, एक सॉलिड स्फीयर रिमूव हुआ है। सो आई होप इट इज़ क्लियर। जिनको क्लियर है अच्छी बात है, जिनको नहीं क्लियर दे कैन ड्रॉप अ मैसेज टू मी, जो ड्रॉप कर दें मैसेज। तो पहले 15 मिनट में हमारी यही डिस्कशन हुई कि फर्स्ट यूनिट में से अभी क्या क्या रिमूव हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, ठीक है। सो देन यू कैन सी द नेक्स्ट वन। तो एक बार दोबारा से जल्दी से देख लें कि और हमारा क्या है फर्स्ट यूनिट में अभी पेंडिंग। रिमूव तो बच्चे यही हुआ है, रिमूव 2 ही चीज़ें हुई हैं, एक सॉलिड स्फीयर का केस और एक हॉलो स्फीयर का केस, 2 ही केस रिमूव हुए हैं। बाकी फर्स्ट यूनिट में जो बाकी जो सिलेबस है इक्वी पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर का, वो ऑलमोस्ट सारा सेम है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है, देन ड्यू टू पॉइंट चार्ज है, डाइपोल्स के लिए सिस्टम है, इक्वी पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी का सिस्टम है, ठीक है, एंड देन कंडक्टर एंड फ्री इंसुलेटर, फ्री चार्जेस। तो इस तरह की काफ़ी टॉपिक्स हैं, पोलराइजेशन है, कैपेसिटर है,
कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल है, कैपेसिटेंस इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम, एंड देन एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। बट इसमें लॉस ऑफ एनर्जी का क्वेश्चन नहीं है बच्चे। लॉस ऑफ एनर्जी अगर आपको बताया हो, सर ने करवाया हो या मैंने करवाया हो, तो लॉस ऑफ एनर्जी की डेरिवेशन वाला टॉपिक नहीं है, तो वो शायद CBSE में ही नहीं है। अगर कहीं किया हो तो, अगर कर लिया है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं किया तो इसको स्किप कर सकते हो। तो फर्स्ट यूनिट आई होप फर्स्ट यूनिट इज़ क्लियर। सो व्हाट आर द चेंजेस इन द फर्स्ट यूनिट? ऑलमोस्ट नथिंग इज चेंज्ड। 2 टॉपिक रिमूव हुए हैं, दैट आर रिटन हेयर। 2 टॉपिक रिमूव हुए हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फीयरिकल शेल। तो इसमें एक हॉलो स्फीयर है जिसका ग्राफ ऐसा बना था हॉलो स्फीयर का। वेट, ग्राफ फॉर हॉलो स्फीयर मैं बता चुका हूँ, वैसे आप वहाँ पे रिकैप करके देख लो, ठीक है। हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर आर द 2 पार्ट्स दैट आर रिमूव्ड, एंड दिस इज द रिमूव्ड पार्ट। This is the removed part. So here I have also written deleted part. So this is the deleted part from the first unit. Now we are going to discuss the second one. Second unit में से देखते हैं कि क्या क्या रिमूव कर दिया। Second unit is current electricity. Second unit is current electricity. So what are the topics that are present? Electric current present है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन यहाँ पे आएगी बेसिकली। देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटलिक कंडक्टर, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी एंड देयर रिलेशन विद इलेक्ट्रिक करंट। तो ये मोबिलिटी एंड रिलेशन कर लेना बच्चे, ये हमने किया हुआ है। ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आ गई। VI करेक्टरिस्टिक्स, लीनियर एंड नॉन लीनियर, बच्चे ये इंपॉर्टेंट है, आई थिंक आपको करवाया भी था। लीनियर एंड नॉन लीनियर डिवाइसेस। तो इफ़ द डिवाइस इज दिस वन, सो इफ़ दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स। एक करेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। अगर ये करेक्टरिस्टिक्स होंगी दिस वन, अगर ये लीनियरली ग्राफ चेंज होगा देन दिस इज़ द लीनियर डिवाइस। और अगर ये ग्राफ इस तरह से चेंज हो जाए, ऐसे कहीं ऐसे, दिस इज़ द वोल्टेज एंड दिस इज़ द करंट। तो वोल्टेज वर्सेस करंट ले लो, इस तरह से भी ले सकते हो, या फिर आप दूसरे तरह से भी ले सकते हो। वोल्टेज ऑन द एक्स एक्सिस, यहाँ पे वोल्टेज ले लो, यहाँ पे करंट ले लो। सो इफ़ वोल्टेज एंड करंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देन इट इज़ कॉल्ड लीनियर। अगर इस तरह से कुछ रैपिडली चेंज हो जाए दैट इज़ कॉल्ड नॉन लीनियर। लीनियर डिवाइसेस आर रेजिस्टेंस लीनियर डिवाइस है। एंड डायोड जो है इलेक्ट्रिक डायोड, दैट इज़ PN जंक्शन डायोड, दैट इज़ नॉन लीनियर डिवाइस। लीनियर एंड नॉन लीनियर कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर का रिलेशन, रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ओके, R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी, R0 1 प्लस अल्फा इंटू टी, वेयर अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट था और डेल्टा टी क्या है, डेल्टा, यहाँ पे डेल्टा टी आएगा। डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर। सो आई होप यहाँ तक हमें क्लियर है। देन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF ऑफ अ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज एंड पैरेलल, KVL, किरचॉफ्स लॉ एंड सिंपल एप्लीकेशन लिखा है बच्चे यहाँ पे देखो कि किरचॉफ्स लॉ एंड सिंपल एप्लीकेशन। तो सिंपल एप्लीकेशन अब पता नहीं, चलो कैसे कह सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, बहुत है वो। व्हीटस्टोन ब्रिज, ओके। मीटर ब्रिज, क्वालिटेटिव आइडियाज़ ओनली। तो मीटर ब्रिज के रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स जो है उनके आइडिया होना चाहिए, है ना। इसी तरह से क्वालिटेटिव आइडियाज़ ओनली, इसका मीनिंग अभी हम देखेंगे कि इसका क्या रोल रहा। वैसे अब जब हम वेट करेंगे कि एक बार CBSE अगर सैम्पल पेपर रिलीज़ करे विद इन 15 to 20 डेज़ और 1 मंथ, तो एक बार अगर सैम्पल पेपर आए तो हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा अच्छे से कि CBSE क्या फोकस कर रहा है, किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा है इस बार। सो यहाँ पे चेंजेस, पोटेंशियोमीटर हमारा अवेलेबल रहेगा एंड इंटरनल रेजिस्टेंस मेज़र करनी, कंपेयरिंग करनी, तो EMF की, तो काफ़ी कुछ अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि सिलेबस रिडक्शन हुई है बहुत ज़्यादा। सिलेबस रिडक्शन फर्स्ट के यूनिट्स में कम है, लास्ट के यूनिट्स में ज़्यादा है। फर्स्ट यूनिट में मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी व्हाट आर द चेंजेस इन फर्स्ट
यूनिट फर्स्ट यूनिट की चेंजेस आप ऑब्जर्व कर चुके हो। सॉलिड स्फीयर एंड हॉलो स्फीयर रिमूव हुए हैं यहाँ पे गॉस लॉ की एप्लीकेशन में से, ठीक है, सॉलिड स्फीयर एंड हॉलो स्फीयर। उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर दैट सेकंड यूनिट में से क्या रिमूव किया, आप देखो सेकंड यूनिट सारी हमने देखी यहाँ पे पड़ी है। तो डिलीटेड पोर्शन देखो एक बार, डिलीटेड पोर्शन में क्या है, दे हैव डिलीटेड, कुछ डिलीट कर दिया ऐसा जो मतलब जिसकी ज़रूरत हमें रहेगी। अगर हम KVL KCL कुछ भी करेंगे उस चीज़ की ज़रूरत हमें रहेगी, उसको रिमूव किया है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे एक तो कार्बन कलर, कार्बन रेजिस्टेंस कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंस, तो जो हमने कोडिंग की थी BB रॉय वाली उसको रिमूव कर दिया। BBROY वाली कोडिंग है ना, BBROY वाली कोडिंग, दैट इज़ रिमूव्ड, उसको रिमूव कर दिया। तो उसके ऊपर बेस्ड एक तो जो क्वेश्चन आने थे वो हमारे गए। देन दे आर सेइंग दे हैव रिमूव्ड द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। बच्चे अब इसका बहुत बड़ा मीनिंग बन जाता है, अगर ये इफ़ दे हैव रिमूव्ड द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, तो अगर ये रिमूव कर दिया तो फिर तो काफ़ी कुछ रिमूव हो गया। मतलब वो इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन भी गए और वोल्टेज वाले क्वेश्चन भी गए जिसमें हम वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करते थे, करंट फाइंड आउट करते थे, करंट की रेशो वगैरह। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होगी कि देखना होगा अगर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन CBSE ने हटा दिया है। तो सैम्पल पेपर देखेंगे, सैम्पल पेपर में से पता लगेगा कि इस टाइप इसको हटाने से क्या CBSE ने सारे टाइप के रेजिस्टेंस के क्वेश्चन हटा दिए जो सीरीज एंड पैरेलल के थे, क्योंकि रेजिस्टेंस के बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको याद हो इस टाइप के बहुत क्वेश्चन बनते थे, इस टाइप का एक और रेजिस्टेंस लग गया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया और हमने फाइंड आउट करना है करंट थ्रू दिस रेजिस्टेंस, ठीक है। जहाँ फिर इस टाइप के क्वेश्चन होते थे, ये एक रेजिस्टेंस है, एक और ऊपर रेजिस्टेंस है, एक और रेजिस्टेंस यहाँ पे है, एंड वी हैव टू फाइंड द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। तो ये दे कैन बी इक्वल, तो देखने वाली बात होगी कि सीरीज एंड पैरेलल रिमूव करने से क्या होगा, ठीक है। बट आई थिंक यहाँ पे आपके 1 to 2 to 3 मार्क्स जो हैं वो इजीली मिल सकते थे आपको यहाँ पे, जो आपके 4 to 5 मार्क्स भी मैं बोल सकता हूँ। अगर मैं कार्बन कलर कोड की बात करूँ तो 4 to 5 मार्क्स आपके यहाँ पे चले गए, लेकिन वो कहाँ पे एडजस्ट होंगे सेकंड यूनिट में, ये देखने वाली बात होगी। अगर मैं 4 to 5 मार्क्स की बात करूँ या 3 to 4 मार्क्स की बात करूँ तो वो कहाँ पे एडजस्ट होंगे, अब वो KVL में एडजस्ट होंगे, KCL में एडजस्ट होंगे, कहाँ पे एडजस्ट होंगे देखने वाली बात है। मीटर ब्रिज में भी एडजस्ट हो सकते हैं, मीटर ब्रिज के बहुत अच्छे क्वेश्चन हमने किए थे, तो अगर मीटर ब्रिज के क्वेश्चन में एडजस्ट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आई थिंक। तो इस टाइप की चेंजेस हैं। सेकंड यूनिट क्लियर, सेकंड यूनिट में से क्या रिमूव हुआ, फ्रॉम द सेकंड यूनिट कार्बन कलर रेजिस्टेंस कलर कोड फॉर कार्बन कलर, ओके, कार्बन रजिस्टर रिमूव हुए हैं, कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर ये रिमूव हुआ है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन रिमूव हुआ है। सो दीज आर टॉपिक्स आर रिमूव्ड फ्रॉम चैप्टर नंबर 3, दैट्स वाई इट इज़ रिटन हेयर चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 इसलिए मेंशन किया है क्योंकि जहाँ से रिमूव किए हैं ना उस चैप्टर को CBSE ने लिखा है। मैंने आपको PDF दिखाई थी एक, ये देखो PDF, लुक एट दिस PDF। तो यहाँ पे देखो हर टॉपिक के साथ उन्होंने चैप्टर नंबर लिख दिया, कौन से चैप्टर में से कौन सा PDF टॉपिक रिमूव किया, तो इसलिए ये चैप्टर नंबर लिखे हैं। अदरवाइज़ इनका कोई बहुत, अगर आप कहो कि चैप्टर नंबर लिखने से चैप्टर रिमूव हो गया, वो नहीं है। सो चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 2 में से क्या रिमूव हुआ मैंने बता दिया आपको, यूनिट नंबर 1 में से क्या रिमूव हुआ वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ मूविंग टू द यूनिट नंबर 3, तो 3 नंबर देख लेते हैं यूनिट में से क्या रिमूव हुआ। फ्रॉम द यूनिट नंबर 3 यू कैन सी हेयर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो इसमें काफ़ी कुछ है, बहुत बड़ा यूनिट है, अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, ठीक है, बहुत बड़ा यूनिट है, अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, तो अभी देखेंगे कब करते हैं इसको स्टार्ट, है ना। सो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म काफ़ी बड़ा यूनिट है, स्टार्टिंग है, बॉयड-सावर्ट लॉ है, एम्पियर सर्किट लॉ है, फोर्स है। तो ये अभी इतना ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी कुछ हमने इसमें से नहीं किया अभी तक, मतलब अभी हमने स्टार्ट ही नहीं किया, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। बट इसमें से जो रिमूव हुआ है टॉपिक वो मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा, द टॉपिक्स दैट आर रिमूव्ड, तो टॉपिक ज़रूर मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। डिलीटेड पार्ट बाकी सारा सेम है ऑलमोस्ट। तो इसमें से काफ़ी कुछ रिमूव हुआ है ना। हाँ, इसमें से एक टॉपिक अच्छा आता है पेपर में जो इजीली हमें मार्क्स दे जाता है, 2-3 मार्क्स। तो पहले तो ये देखो कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ओके चलो, फोर्थ में से भी एक अच्छा टॉपिक रिमूव कर दिया इन्होंने, दैट इज साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन को रिमूव कर दिया यहाँ पे फ्रॉम द चैप्टर नंबर 4,
साइक्लोट्रॉन इज रिमूव्ड, तो साइक्लोट्रॉन को रिमूव कर दिया। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफ़ी अच्छा टॉपिक था। अगर पेपर में कहीं मिल जाता आपको तो 3-4 नंबर अच्छे से मिल जाते आपको, कम से कम 3 या 4 नंबर। बट अब रिमूव हो गया तो इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छी यहाँ से एक तो इसकी अभी मैं बता देता हूँ। वैसे एक तो इसका प्रिंसिपल हो जाना था साइक्लोट्रॉन का, फिर उसकी वर्किंग हो जानी थी, दैन उसकी डिसएडवांटेज हो जानी थी, है ना। दैन उसके फॉर्मूले जो हैं उसके ऊपर बेस्ड 1 to 2 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि हमने मास को डबल कर दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की एक्सपेक्टेशन थी कि चलो आएंगे, लेकिन टॉपिक को रिमूव ही कर दिया है तो फिर इस टाइप की क्वेश्चंस की कोई मीनिंग नहीं है। तो साइक्लोट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम द 4th चैप्टर यूनिट नंबर 3, तो साइक्लोट्रॉन को रिमूव कर दिया गया। देन इसी टाइप से एक अच्छा टॉपिक आता था, चलो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये मैग्नेटिक डाइपोल को बिल्कुल हटा दिया गया है। हाँ, जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टडी की थी वैसे ही एक मैग्नेटिक डाइपोल होती है, दैट इज़ हैविंग नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होता है इसमें, इसके एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते थे हम यहाँ पे, यहाँ कहीं। और इक्वेटोरियल लाइन हमारी यही, जैसे हमारी इक्वेटोरियल लाइन उसमें थी डाइपोल के केस में, वैसे ही इक्वेटोरियल लाइन ये थी, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा इक्वेटोरियल लाइन पे, ठीक है। तो उन इसका भी अच्छी डेरिवेशन थी, अगर देखी जाए तो इसकी भी अच्छी डेरिवेशन थी, वो भी रिमूव कर दी गई है। सो इलेक्ट्रिक यहाँ पे देखो, पहले तो साइक्लोट्रॉन को रिमूव कर दिया, ठीक है। आफ्टर दैट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल अलॉन्ग इट्स एक्सिस, तो एक्सिस पे रिमूव कर दिया, परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस यहाँ पे भी कर दिया रिमूव। टॉर्क भी रिमूव कर दिया, टॉर्क का टॉपिक भी रिमूव कर दिया। तो एक तरीके से डाइपोल इसमें से बिल्कुल ही हटा दी। और उसके बाद एक टॉपिक है पैरा डाया एंड फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, तो ये अच्छा टॉपिक होता था विद एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ। तो काफ़ी कुछ रिमूव कर दिया परमानेंट मैग्नेट। तो बेसिकली अगर देखा जाए फर्स्ट 2 यूनिट्स में से, फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट में से उतना ज़्यादा कंटेंट नहीं रिमूव हुआ जितना यूनिट नंबर 3 में से रिमूव हुआ। तो यूनिट नंबर 3 में से काफ़ी कुछ रिमूव कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो यूनिट नंबर 3 में से बहुत कुछ रिमूव हो गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे डिलीटेड पार्ट रिटन आई एम हेयर। द PDF इज़ अवेलेबल विद मी ऑल्सो, अगर आप PDF से रीड करना चाहते हो तो PDF से भी कर सकते हो। तो यूनिट नंबर 3 में से काफ़ी कुछ रिमूव है, आई एम रिपीटिंग, यूनिट नंबर 3 में से काफ़ी कुछ रिमूव है एज़ कम्पेयर टू यूनिट नंबर 1 एंड 2। यूनिट नंबर 1 एंड 2 के कंपेरेटिवली यूनिट नंबर 3 में से काफ़ी कुछ ज़्यादा रिमूव है। तो you can pause the, now I am scrolling the video for the first 3 units. This is the syllabus of chapter number 1, revised syllabus, electric potential and capacitor. This is the deleted part from the first unit. चैप्टर नंबर 1 में से रिमूव हुआ है, चैप्टर नंबर 2 में से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। देन यूनिट नंबर 2 काफ़ी कुछ है अभी भी इसमें, ऐसा नहीं है कि कुछ रिमूव हुआ है। हाँ, पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन रिमूव होने से काफ़ी क्वेश्चंस रिमूव हो गए, वो हम सैम्पल पेपर आने पे देखेंगे। दिस इज द डिलीटेड पार्ट, कलर कोडिंग एंड सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। फ्रॉम थर्ड यूनिट दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से काफ़ी कुछ रिमूव हुआ है, तो यू कैन कंसनट्रेट ऑन द रिमूव्ड पार्ट। तो डिलीटेड पार्ट के ऊपर ज़्यादा कंसनट्रेट करना, साइक्लोट्रॉन रिमूव कर दिया, काफ़ी कुछ और भी रिमूव कर दिया। तो दीज आर द ये यहाँ पे देखना बहुत ज़रूरी है कि कैसे एडजस्टमेंट होगी मार्क्स की। अब मैग्नेटिक फील्ड में से भी हम उम्मीद करते हैं कि 12 से 15 नंबर का पेपर मिलता है, 12 से 15, तो वो कहाँ पे एडजस्ट होंगे। साइक्लोट्रॉन हटा दिया आपने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हटा दी, पैरा डाया फेरो हटा दिया, और भी कई चीज़ें हैं। तो यहाँ पे काफ़ी वेरी मच पोर्शन, यहाँ पे बहुत पोर्शन है जो रिमूव कर दिया फ्रॉम द यूनिट नंबर 3। सो नाउ यूनिट नंबर 4 पे चलते हैं। चलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहाँ पे बहुत कम चीज़ें रिड्यूस की गई हैं, यहाँ पे सिर्फ, बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ है। अभी हमने ये भी नहीं कभी कवर किया, तो काफ़ी कुछ है इसमें। 2 थिंग्स दैट आर रिमूव्ड आर पावर फैक्टर एंड वाटलेस करंट। तो 2 ही चीज़ें रिमूव हैं, दैट आर फ्रॉम चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 6 में से कुछ चेंज नहीं है, ये पूरे का पूरा फुल रहेगा एज इट इज़। एंड चैप्टर नंबर 7 में से 2 चीज़ें रिमूव है, दैट इज़ पावर फैक्टर, तो ये तो 1-2 नंबर का ही टॉपिक है, एंड वाटरलेस करंट, तो ये भी 1-2 नंबर का ही टॉपिक है। तो बहुत ज़्यादा मेजर पोर्शन 4th यूनिट में से डिलीट
नहीं है, बट सबसे ज़्यादा मेजर पोर्शन मुझे लगा थर्ड में से काफ़ी कुछ रिमूव है। बाकी एंड वाले चैप्टर यूनिट हैं उनमें से काफ़ी कुछ रिमूव है। तो फोर्थ में से बहुत ज़्यादा कुछ रिमूव नहीं है। सो दिस इज़ द स्टेटस अबाउट फोर्थ। तो फोर्थ का स्टेटस ये है कि फोर्थ में से बहुत ज़्यादा कुछ रिमूव नहीं है। 1-2 नंबर गए हैं, कोई बात नहीं, वो कहीं एडजस्ट हो जाएंगे ऊपर। सो दिस इज अबाउट द फोर्थ। यू कैन नोट डाउन पावर फैक्टर एंड वाटरलेस करंट आर रिमूव्ड। फिफ्थ की बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बच्चे ये हमने अभी कवर नहीं किए हुए, बट इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा इनमें से कौन सा टॉपिक डिस्कस रिमूव हुआ कौन सा नहीं हुआ। सो इसमें से बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट रिमूव कर दिया, बट ये टॉपिक अच्छा था। और एक ही टॉपिक इसमें से मिस हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेटेज आगे भी 2 to 4 मार्क्स ही रहती है, इससे ज़्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं करते। और डिस्प्लेसमेंट करंट वाला टॉपिक रिमूव होने से भी आई थिंक 2 to 3 ही वेटेज रहेगी इसकी, 2 to 3 और 4, इससे ज़्यादा वेटेज हम एक्सपेक्ट नहीं करते इस यूनिट में से। और अब तो वैसे काफ़ी कम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ट्रांसवर्स नेचर है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है क्वालिटेटिव आइडियाज़ ओनली, दैट्स मीन ट्रांसवर्स नेचर की डेरिवेशन नहीं है। डेरिवेशन हमने देखा था CBSE की जो बुक है उसमें भी नहीं है, NCERT की। तो जो हम डेरिवेशन कई बार करते हैं ना कि 90 डिग्री एंगल ट्रांसवर्स नेचर का, वो डेरिवेशन आई थिंक नहीं है CBSE के सिलेबस में। और एक अच्छा टॉपिक था डिस्प्लेसमेंट करंट का, वो भी रिमूव कर दिया इन्होंने ड्यू टू कोरोना वायरस, जो 30% रिडक्शन हुई है, तो ये टॉपिक भी रिमूव कर दिया गया है। तो चलिए देखेंगे इसमें से 2 to 3 मार्क्स जब सैम्पल पेपर आएगा किस तरह से हमें मिलेंगे, ठीक है। और बात करते हैं अब 6th यूनिट की। तो 5th में से ज़्यादा कुछ डिलीट नहीं है, डिलीट यही है बस एक टॉपिक। लेकिन इस अब वेटेज कैसे रहेगी, 3 और 4 मार्क्स कहाँ से मिलेंगे, दैट वी हैव टू सी। अभी तक हमने देखा बेसिकली मेजर पोर्शन कहाँ से डिलीट है, थर्ड यूनिट से। फ्रॉम द थर्ड यूनिट वी हैव सीन कि थर्ड यूनिट में से बहुत कुछ डिलीट हुआ है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। उनमें से एज़ कम्पेयर टू हम देखें तो कंपेरिजन, तो थर्ड में से सबसे ज़्यादा अभी तक रिमूव हुआ है। फोर्थ में से ठीक है, एक्सेप्टेबल है, इतना एक्सेप्टेबल है कि अगर कुछ चेंजेस करने हैं 30% रिडक्शन, तो थर्ड फर्स्ट सेकंड में से ठीक है, एक्सेप्टेबल है। फोर्थ फिफ्थ में से भी एक्सेप्टेबल है, थर्ड में से थोड़ा ज़्यादा लगा, बट ओवरऑल ठीक है। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यूनिट नंबर 6 है बच्चे ये आपका। तो यूनिट नंबर 6 यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। तो इसमें से सबसे बड़ी चीज़ जो हटाई है यहाँ पे, हाँ ऑप्टिक्स में से काफ़ी कुछ हटाया गया है। चलिए पहले ऑप्टिक्स में से क्या क्या हटा दिया वो देखते हैं। ऑप्टिक्स में से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हटा दिया है ना। सो दैट मीन्स अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हटा दिया आपने, तो बेसिकली इसमें फिर जो रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड फार्मूला है दैट इज़ कॉल्ड मिरर फार्मूला 1/f = 1/u + 1/v। तो एक तो उसकी डेरिवेशन गई 1/u + 1/v, एक तो इसकी डेरिवेशन गई। एक इसके ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स आते थे वो भी गए, और इसके ऊपर मैग्नीफिकेशन भी गई, इसकी मैग्नीफिकेशन जो होती थी। इसके बिना ये कन्वेक्स मिरर है ना, कन्वेक्स मिरर से जो इमेजेस बनती हैं वो भी गई, और जो कनकेव मिरर से इमेजेस बनती हैं वो भी गई। तो बहुत कुछ चला गया यहाँ पे। अगर आप बात करेंगे ऑप्टिक्स की, तो ऑप्टिक्स में से बहुत कुछ चला गया। डेरिवेशंस गई, न्यूमेरिकल गए, मैग्नीफिकेशन गई। दैट इज़ ओनली बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन अब हम कहाँ करेंगे, +1 में हमने नहीं की, अभी देखेंगे +1 में या +2 में क्या होगा। तो रिफ्लेक्शन को बिल्कुल यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। स्फेरिकल मिरर्स देख लो, ये रिमूव हो गए। हाँ, मिरर फार्मूला, ये देखो मिरर फार्मूला भी रिमूव कर दिया। दैट मीन्स मैग्नीफिकेशन भी रिमूव हो गई, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला। उसके बाद स्कैटरिंग ऑफ लाइट, चलो ये तो हम मान सकते हैं कि थोड़ा सा ये है कि सन जो है वो रेड हमें क्यों दिखता है एज़ कम्पेयर टू जब वो सनराइज़ और सनसेट होता है, तो रेड कलर क्यों दिखता है हमें, है ना। स्काई का ब्लू क्यों दिखता है और सन का रेड क्यों दिखता है। जो इस टाइप के क्वेश्चन ये थे जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर बेस्ड थे। चलो ये तो 1-1, 2-2 मार्क्स के थे। बट मेजर पोर्शन जो चेंज है यहाँ पे देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को रिमूव कर दिया गया है। स्फेरिकल मिरर से जो मिरर इमेजेस बनती थी कि कहाँ पे रखने से इमेज कितनी बड़ी दिखेगी, वो रिमूव कर दिया। और मिरर फार्मूला भी रिमूव कर दिया गया है। दैट मीन्स मिरर फार्मूले से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इन द CBSE एग्ज़ाम, तो वहाँ पे न्यूमेरिकल्स नहीं मिलेंगे। इसके बाद और क्या चेंजेस आए,
रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की डेफिनेशंस वगैरह हैं। हाँ जी, पोलराइजेशन सबसे बड़ा टॉपिक रिमूव कर दिया इन्होंने। पोलराइजेशन रिमूव कर दिया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट रिमूव कर दी, ब्रिस्टर्स लॉ रिमूव कर दिया, यूजेस ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड पोलराइड, तो पोलराइड भी रिमूव कर दिए। तो दैट मीन्स एक पूरा जो यूनिट चैप्टर का प्लान होता है पोलराइजेशन का, वो रिमूव कर दिया इन्होंने। और पोलराइजेशन अगर आती है तो 2-3 नंबर कम से कम देके जाती है, 2-3 नंबर। ब्रिस्टर्स लॉ भी था यहाँ पे, बट आई थिंक ऑप्टिक्स में भी काफ़ी मेजर चेंज है। ऑप्टिक्स की भी अगर जो मैं देखूँ जितनी इन्होंने रिमूव कर दिया है, तो आई थिंक 4 to 6 मार्क्स ईजिली रिमूव कर दिए यहाँ पे। अब वो 4 to 6 कहाँ पे एडजस्ट होंगे, दैट वी हैव टू सी। वैसे मुझे 4 to 6 से ज़्यादा लग रहा है आई थिंक, तो 4 to 6 मैं अभी मिनिमम लेके चल रहा हूँ कि मिनिमम 4 to 6 मार्क्स की वेटेज यहाँ पे इसकी है जो डिलीटेड पोर्शन है। 4 to 6 जो पोर्शन डिलीट कर दिया उसकी वेटेज की बात कर रहा हूँ। आई एम डिस्कसिंग अबाउट द डिलीटेड पोर्शन, तो जो पोर्शन डिलीट कर दिया उसकी वेटेज की बात है ये। आई थिंक जो मेरा अप्रॉक्सीमेटली टीचिंग एक्सपीरियंस है कि 4 to 6 मार्क्स की वेटेज यहाँ से रहती है, और 4 to 6 मार्क्स की अगर वेटेज यहाँ पे गई है तो वो ऊपर कहीं एडजस्ट होगी इस पूरे यूनिट में, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। इस बार जो क्या कहते हैं उसको, हाँ, यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस में से बहुत क्वेश्चन आएंगे इस बार। हाँ, इंटरफेरेंस में से बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। अभी एक बार चेक कर लें, अभी हमने कवर नहीं किया तो ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रहेगा, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन, तो जहाँ पे एप्लीकेशन में आ जाएगी ऑप्टिकल फाइबर, तो ऑप्टिकल फाइबर ये देखो अलग से भी इन्होंने लिख दिया। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, ये पहले भी था। लेंसेज हैं, थिन लेंस फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला, मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा बच्चे। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, जहाँ पे पावर ऐड हो जाती है और फोकल लेंथ इन्वर्सली ऐड होती है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, अभी हमने नहीं किया बट अच्छा रहेगा, इसमें से कंसेप्ट के साथ करेंगे अच्छे से तो ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सिंपल माइक्रोस्कोप आएगा एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप आएगा, देन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आएंगे, दोनों टाइप के, रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग। एंड देन हमारा वेव ऑप्टिक्स से स्टार्ट होगा। वेव ऑप्टिक्स में काफ़ी कुछ है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा इस बार आई थिंक इंटरफेरेंस, क्योंकि इस बार जो पोलराइजेशन रिमूव हो गई तो इंटरफेरेंस के ऊपर सारा जो बर्डन है वो आ गया। जैसे हम कहते हैं कि ओपनर आउट हो गया तो विराट कोहली के ऊपर आ गया, तो पोलराइजेशन अब हट गई तो सारा कुछ ऊपर आ गया इंटरफेरेंस के ऊपर। बाकी डिफ्रैक्शन भी है, डिफ्रैक्शन का भी रहेगा काफ़ी कुछ, सेंट्रल मैक्सिमा मिनिमा, काफ़ी कुछ है इसमें एक्चुअली। अब ये ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बता सकता आपको। सो ऑप्टिक्स में से मेजर चेंजेस हैं, जैसे मैंने बताया मैग्नेटिक फील्ड में से चेंजेस हैं, ऐसे ही ऑप्टिक्स में से भी अच्छी मेजर चेंज है। ऑप्टिक्स में से भी काफ़ी कुछ रिमूव कर दिया गया है एंड इतना कुछ रिमूव कर दिया है तो अप्रॉक्सीमेटली वेटेज मैं बता चुका हूँ आपको इसकी। अप्रॉक्सीमेटली वेटेज इज़ 4 to 6, इतनी वेटेज मिनिमम है एंड दिस वेटेज विल बी एडजस्टेड, ये एडजस्ट होगी ऊपर कहीं, तो वो देखने वाली बात है कि कैसे एडजस्ट की जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ द डिलीटेड पार्ट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। बाकी अगर PDF आपको रिक्वायर्ड है तो वो भी मैं सेंड कर दूंगा, डोंट वरी। नेक्स्ट इज 7th यूनिट, तो 7th यूनिट में चलते हैं जी। 7th यूनिट में क्या क्या चेंजेस आई हैं, तो 7th यूनिट में एक ही अच्छा टॉपिक था वो रिमूव कर दिया इन्होंने, तो दैट इज़ डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट। सो डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट को रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। एक अच्छा टॉपिक था वैसे, चलो अब रिमूव हो गया है तो हाँ, अब इसमें से इम्पॉर्टेंट क्या रह जाएगा, बिकॉज डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट अगर रिमूव कर दिया है तो बाकी क्या बचा, ये भी देखने वाली बात है। तो बाकी जो बचा है दैट इज़ पहले तो ड्यूल नेचर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ऑब्जर्वेशंस हैं, आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, पार्टिकल नेचर। तो यहाँ तक पार्टिकल नेचर है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बचा है ये यूनिट। अप्रॉक्सीमेटली वेटेज इसकी भी अच्छी है वैसे, बट ये जो रिमूव किया है इसकी तो वेटेज चलो 1-2-3 नंबर की ही होगी। बट यहाँ से अब इम्पॉर्टेंट क्या रह गया है वो देखना है। इम्पॉर्टेंट बचा है बच्चे फोटो इलेक्ट्रिक लॉज, जो लॉज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, जो मैंने वीडियोस यूट्यूब के ऊपर भी डिस्कस किए हुए हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अब इसके बाद, क्योंकि काफ़ी कुछ रिमूव हो जाता है जब, तो बचता क्या है। और इससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज़, MCQ की सीरीज़, कम से कम आई थिंक 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस होंगे मेरे साथ। 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब इस टाइप की कोई चेंज आती है।
So this is removed Davison German experiment and rest of the syllabus is same. तो यहाँ से कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ठीक है। 7th यूनिट में भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है। चेंजेस कहाँ पे आई हैं? मोस्ट ऑफ द चेंजेस आर इन यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 6। तो 3 और 6 में बहुत चेंजेस है अभी तक, ठीक है। तो 7th वी हैव डन, तो 7th को डिस्कस कर चुके हैं हम। चलते हैं 8th के ऊपर। 8th में भी काफ़ी कुछ चेंजेस हैं। 8th में भी बहुत कुछ रिमूव किया गया है। लेट्स डिस्कस दैट वन ऑल्सो। तो अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिस ना अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो रदरफोर्ड ने किया था, वो आ गया रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। तो बोहर का मॉडल आ गया, फिर एनर्जी लेवल आ गए एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आ गए। उसके बाद न्यूक्लियस की बात करेंगे, कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस आ गया, ठीक है। साइज ऑफ न्यूक्लियस, मास एनर्जी रिलेशन, मास डिफेक्ट आ गया, न्यूक्लियर फिजन आ गया और न्यूक्लियर फ्यूज़न आ गया। यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा हुआ कुछ। मास डिफेक्ट का डेफिनेशन आई थिंक आपको पता होना चाहिए, मास एनर्जी रिलेशन पता होना चाहिए। तो रिमूव क्या किया, देखो रिमूव क्या किया, देखो बाइंडिंग एनर्जी कहीं पे टॉपिक नहीं आ रहा, बहुत कुछ यहाँ पे भी रिमूव हो गया, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली वही 4 to 6 की वेटेज मानूंगा मैं, 4 to 6 की वेटेज यहाँ पे भी रिमूव हो गई, ठीक है। 4 to 6 बोल लो या फिर 4 बोल लो, चलो मिनिमम, ठीक है। 4 नंबर की वेटेज यहाँ पे रिमूव हो गई अप्रॉक्सीमेटली। रेडियो एक्टिविटी रिमूव कर दी। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? अल्फ़ा बीटा गामा पार्टिकल एंड देयर प्रॉपर्टीज़। तो अल्फ़ा बीटा गामा डिके भी बोल सकते हैं कि अल्फ़ा बीटा गामा डिके ही हटा दिया। रेडियो एक्टिव डिके लॉ, तो ये भी हटा दिया। सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक था हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते थे और हमारे नोट्स में भी बहुत कुछ इसमें इससे रिलेटेड अवेलेबल मिलेगा आपको, बट इसको भी रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी बिल्कुल ही हटा दी गई है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट्स वेरिएशन विद मास नंबर। तो एक बाइंडिंग एनर्जी की कर्व होती थी ऐसी, यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी होता था, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, है ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता था एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इस तरफ होता था बच्चे मास नंबर। तो इसकी कर्व जो थी दैट इज लाइक दिस वन, तो इस टाइप की कर्व बनती थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी रिमूव कर दी गई है। तो बाइंडिंग एनर्जी भी रिमूव है, इसमें से काफ़ी कुछ रिमूव है एक्चुअली। आई थिंक अगर मिनिमम मैं देखूँ 4 नंबर की वेटेज मिनिमम यहाँ पे रिमूव्ड है, और ये 4 नंबर कहाँ पे एडजस्ट होंगे, अब ये 4 नंबर कहीं ना कहीं ऊपर एडजस्ट होंगे। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आई है एक्चुअली, जो मैंने ऑब्जर्वेशन, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है कि जो टॉपिक्स बचे हैं उनमें से बहुत डीपली आपको क्वेश्चंस करने होंगे, जो भी टॉपिक बचे हैं, क्योंकि इनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको आप स्किप करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे बहुत डीप स्टडी करने की अब ज़रूरत हो गई है। सिलेबस रिड्यूस जरूर हुआ है लेकिन मार्क्स तो सेम है ना, सो मार्क्स आर सेम। सो दैट मीन्स यहाँ पे जो 4 to 5 नंबर की वेटेज है वो ऊपर कहीं एडजस्ट होगी। तो वहाँ पे एडजस्टमेंट करने के लिए आपको बहुत अच्छे से कंसंट्रेशन से पढ़ना पड़ेगा। तो और सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे जितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करके चलोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए हमने सैम्पल पेपर भी दिया हुआ है, उससे भी आप देख सकते हो। मेजर चेंजेस अब हमने ऑब्जर्व किया अभी तक, यूनिट नंबर 3 में से काफ़ी कुछ रिमूव था, यूनिट नंबर 6 ऑप्टिक्स में से काफ़ी कुछ रिमूव था, 8th यूनिट में से काफ़ी कुछ रिमूव है। अब बचा है हमारे पास लास्ट, दैट इज़ 9th यूनिट। तो 9th यूनिट की भी डिस्कस जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या रिड्यूस है। 9th यूनिट में से जीनर डायोड को हटा दिया गया है बच्चे, जीनर डायोड एंड इट्स करैक्टरिस्टिक्स। तो जीनर डायोड को हटा दिया गया है और जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर को भी हटा दिया गया है। तो एक अच्छा टॉपिक हमारा गया जो 2-3 नंबर हमें दे सकता था। तो अब इस टॉपिक के जाने से बेनिफिट क्या होगा, और भी देखो यहाँ पे क्या गया, सेमीकंडक्टर डिवाइस गए, मटेरियल गए, डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट। अच्छा ये तो टॉपिक वो है अपना यूनिट का नाम है, ठीक है। तो हमारा गया क्या है एक्चुअली, हमारा गया है सिर्फ जीनर डायोड एंड देयर करैक्टरिस्टिक्स, जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो ये गया है हमारा, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पे देखो क्वालिटेटिव आइडियाज़ लिखा है, दैट मीन्स आपको इनके एनर्जी गैप पता होने चाहिए, इंसुलेटर का, कंडक्टर का और सेमीकंडक्टर का, इनके गैप पता होने चाहिए, है ना, कितना गैप है इनके बीच में, एनर्जी गैप। तो वो हम काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं।
हाँ, जो टॉपिक रिमूव हुआ है इसके ऊपर 2-3 नंबर बनते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ऊपर आ जाएंगे, ऊपर एडजस्ट होंगे यहाँ पे। तो हो सकता है आपसे एनर्जी गैप ही पूछ ले डायरेक्टली कि सेमीकंडक्टर के केस में कितना होता है, जहाँ इंसुलेटर के केस में कितना होता है। और जीना डायोड को रिमूव करने के बाद जो क्वेश्चंस फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग की है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कि फॉरवर्ड बायसिंग वाले क्वेश्चन जो मैंने करवाए थे कि लाइट्स वाले क्वेश्चन है, इस टाइप से लाइट मिलती है यहाँ पे, तो दैट टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। लाइट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, या फिर रेजिस्टेंस के प्रॉब्लम आ जाते हैं विद डायोड। तो बहुत इंपॉर्टेंट का टॉपिक सभी भी हैं 9th यूनिट में से भी। तो यहाँ से भी मैं ये नहीं मानता कि बहुत ज़्यादा कुछ रिमूव हुआ, बट जो टॉपिक रिमूव हुआ ये अच्छा टॉपिक इंपॉर्टेंट वन था। तो व्हाट वी हैव सीन हेयर के जो CBSE ने 30% रिडक्शन की है एज पर देयर टर्म्स एंड कंडीशन, जो उन्होंने रिडक्शन की है। फर्स्ट यूनिट में से कुछ बहुत ज़्यादा रिमूव नहीं है, सेकंड में से भी कुछ बहुत ज़्यादा रिमूव नहीं है, थर्ड में से काफ़ी रिमूव है, फोर्थ में से भी कुछ ज़्यादा रिमूव नहीं है, फिफ्थ में से भी ठीक ठीक है, बट सिक्स्थ में काफ़ी रिमूव है, सेवन्थ में ठीक है, बट एट्थ में काफ़ी रिमूव है, एंड नाइन्थ में भी उतना ज़्यादा रिमूव नहीं है। बट जो यहाँ पे रिडक्शन है दैट इज़ वेरी, रिडक्शन जो है बहुत मतलब इस तरह से की गई है कि एट्थ में से काफ़ी रिडक्शन हुई है, सिक्स्थ में से भी काफ़ी हुई है, थर्ड में से भी काफ़ी हुई है। तो ये जो 3 मैंने कंक्लूड किया है कि इन 3 में से काफ़ी रिडक्शन हुई है, और जो टॉपिक्स रिड्यूस हुए हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 12 से 15 नंबर के थे, और वो 15 नंबर अब कहाँ पे किस टॉपिक में एडजस्ट होंगे ये देखने वाली बात होगी। सो वी हैव टू वेट फॉर सैम्पल पेपर, एक बार सैम्पल पेपर की वेट करेंगे। बाकी स्टडी को कंटिन्यू रखिए जैसे भी हम चल रहे थे। कोई टॉपिक रिमूव हुआ है थोड़ा उस पर हम कंसंट्रेशन कम कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं हम स्किप करेंगे, थोड़ा बहुत आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। बाकी वेट करेंगे सैम्पल पेपर की। इफ़ यू फील दिस वीडियो इज़ यूज़फुल, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो कि हमने क्या क्या डिस्कस किया इसमें, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो देन यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो थर्ड इज मेजर चेंजेस किस में है, थर्ड में, सिक्स्थ में एंड यूनिट नंबर 8 में। बाकी 9, 1, 2, 4, 5, 7, 9 इनमें उतनी ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है, एक्सेप्टेबल है, बट इनमें ज़्यादा लगी 3, 6 एंड 8 में। नाइन्थ में वोल्टेज रेगुलेटर, जीनो डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर रिमूव कर दिया, वो काफ़ी सरप्राइजिंग डिसीजन था। बट चलो अभी डिसीजन भी जिन्होंने भी लिए हैं अच्छे ही होंगे, चलो ले लिए अब ऐसे टाइम पे। तो 3, 6 एंड 8 में मेजर चेंजेस हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वायरीज रिगार्डिंग द सिलेबस चेंज ऑफ +2 देन यू कैन ड्रॉप अ मैसेज टू मी। अभी हम +1 का इवनिंग में डिस्कस करेंगे। सो +2 के सिलेबस में किसी को भी कहीं पे कोई डाउट है देन यू कैन डिस्कस विथ मी। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्क्रॉल द सिलेबस फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट। एक बार फर्स्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, साथ के साथ बोलूँगा नहीं। सो दिस इज़ द सिलेबस फॉर फर्स्ट यूनिट। चैप्टर नंबर 1, you can pause the video and take screenshot. Chapter number 2, deleted portion from first unit. Unit number 2, deleted portion from unit number 2. Unit number 3, deleted portion from unit number 3. Unit number 4 and deleted portion from unit number 4. Unit number 5 and deleted portion from unit number 5. Unit number 6, unit number 6 and deleted portion from unit number 6. Unit number 7 and deleted portion from unit number 7. Unit number 8 and deleted portion from unit number 8. Unit number 9 and deleted portion from unit number 9. Students, if you feel this video is useful to you, then you can like and share this video with your friends. And thank you so much. This is my mobile number. For any queries, you can drop a message to me.
if any query is there or any suggestion you want to provide. So in the next video we will discuss the syllabus of +1. So thank you so much students, have a nice day ahead. If you need these two PDFs that are available with me, this is the revised syllabus and this is the deleted part. Okay, so this is the deleted portion. If you need these PDFs, these are available on the CBSE website. If you can drop a message to me also if you need this one. So thank you so much, have a nice day ahead, take care, bye bye.